dear students, welcome to my channel Alvina Zoid Learning English. In this video, we will cover our most important poetry section. What is the picture all about? I think so you got a very nice guess that the picture is all about keeping quiet. What do you mean by keeping quiet? Do we learn something? Do we achieve something? Do we analyze something? Or do we really come to a conclusion? ये सारे क्वेश्चन हर किसी के दिमाग में घूमते हैं when we read this particular poem. तो चलिए स्टूडेंट्स जानते हैं what is the most important points about this poem named Keeping Quiet. यस स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे कवर किया है और वो है इस पोम की थीम. इस पोम की थीम है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन विच इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ इवैल्यूएशन और इंट्रोगेशन. बट बिफोर वी गो और हम आगे बढ़े, हमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज जाननी है कि हु इज द मास्टर बिहाइंड दिस वंडरफुल पोम. यस, the poem is composed by a very famous poet named Pablo Neruda, who received even Nobel Prize for Literature and composed many poems. But above all, what is the basic brief outlook of the poem? Yes, जैसा कि you can see from here, मैंने बिल्कुल क्लियरली आपको समझाने की कोशिश करी है with the help of this poem that we all are running a rat race, and in this rat race we don't have time to evaluate ourselves and the surrounding what is happening around us. Let's start the poem in a very clear manner. The poem goes like this. Let's begin the poem. Now we will count to 12 and we will all keep still. Yes students, what does this line mean? इस line में what is 12? Yes students, इस poem में 12 stands for 12 months of the year. We know very well we have 12 months in an year, and just opposite to that the poet is also trying to say that कि हमारे पास दिन में 12 घंटे होते हैं for day and for night. So just because of that the poet is trying to say we need to be quiet when the poet is counting to 12. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. The first two lines stands for that for a moment, means the period of time which the poet is talking. We need to introspect ourselves. Introspect means we need to evaluate. हम लोगों को अपने आप को जानने की जरूरत हो कि what do we will do in that duration. For once on the face of earth, let's not speak in any language. Now we have to understand that कि language क्या होती है ना बेटा, language create करती है barriers. Barriers means when we are living, like suppose we are living in different parts of our country, so we are creating the differences with the help of only the boundaries. Means the Marathi, they are speaking in another language, the Tamils are speaking in their language. So this is what we can say कि language होती है ना, that creates a barrier among us, and that also results us that we are divided just because of different kinds of languages. So that what only the poet is trying to tell. Poet हमको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि at least for a small period of time we should not speak in any language. हमें किसी भी language में बात नहीं करनी है, क्योंकि when we will be talking, जब हम किसी भी language में बात करेंगे तो उस language की वजह से हम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे. तो इसीलिए what does the poet is trying to tell in these two lines? He is trying to simply say that let's not speak in any language, means we should not use any language, any kind of unnecessary words for anyone, so that a uniformity, एक बोलते हैं कि जिसको बोल सकते हैं सिंपल शब्दों में कि
एक यूनिटी वाली फीलिंग को हम डेवलप कर सकें। We move forward in the lines. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. अब student, what does this word mean? Word arms. Arms यहाँ पर दो चीज़ों के लिए यूज़ किया गया है. First of all, arms stand for arms and ammunitions, means guns, weapons, war, disaster and all that. And second thing is movement of hands means performing an action. तो यहाँ पर इन दो लाइनों में पोइट ने सिंपल कहा है कि वी शुड नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, और साथ में ही अगर हम चुप रहते हैं एंड वी आर नॉट परफॉर्मिंग एनी एक्शन, अब वो एक्शन कोई भी हो सकता है, चाहे हम सिंपल कामों को करें या फिर हम किसी भी वॉर में इन्वॉल्व हो, इन सारी चीज़ों को पोएट ने सिंपल कहा है कि वी नीड नॉट टू गेट इन्वॉल्व इन एनी ऑफ द थिंग्स लाइक दिस। अब अगर पोम को आगे बढ़ाएं, so what does this stand for? It would be an exotic moment without rush, without engine. अब now what do you mean by this? इससे क्या समझते हैं? It would be an exotic. Exotic stands for extraordinary, amazing. एक बिल्कुल ही अद्भुत माहौल होगा जब कोई भी रश नहीं होगा, कोई भी शोर नहीं होगा, कोई भी रैट रेस नहीं दौड़ रहा होगा, हर कोई सिर्फ और सिर्फ एक चीज कर रहा होगा और वो होगा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन या आत्म मंथन। We would all be together in a sudden strangeness, and definitely it is called a sudden strangeness. Why is it called sudden strangeness? Means जब चारों तरफ शोर शराबा हो, hue and cry हो, hustle and bustle हो, rat race हो रही हो, तो nobody is going to realize the importance of their qualities. Nobody is going to understand the importance of time. हर कोई बस भाग रहा है। लेकिन अगर हम चुप रहते हैं, अगर हम अपने आप को समझते हैं, अपनी कैपेबिलिटीज को अंडरस्टैंड करते हैं, तो we get a lot of things in return of that. Further in the poem, fishermen in the cold sea would not harm whales. What does this mean? इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है दैट वेल हेयर स्टैंड्स फॉर इनोसेंट क्रिएचर। इनोसेंट आपको पता होगा बच्चों कि इनोसेंट मीन्स समथिंग विच नेवर हार्म्स अदर्स। तो वेल एक ऐसा क्रिएचर यहाँ पे यूज किया गया है दैट इज नॉट हार्मिंग एनीवन। So here simply saying कि for some time at least the fishermen, the hunters, the poachers may not harm the innocent creature, even the creature living in the cold sea. And the man gathering salt would look at his hurt hands. What does this mean? This means that कि the person who is the bread earner of the family, वो क्या करेगा, वो एटलीस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने हाथों को जिस पर नमक कलेक्ट करते करते बाउंस हो गए हैं, वो उन बाउंस को एटलीस्ट देख पाएगा, उनको समझ पाएगा दैट हाउ पेनफुल इट इज, और एटलीस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम ही विल गेट सम रिलैक्सेशन फ्रॉम द एक्टिविटीज व्हाट ही इज डूइंग। मतलब कुछ समय के लिए एटलीस्ट उसको अपने उन हाथों को रिलैक्स करने का समय मिलेगा। दैट इज व्हाट द पोएट इज ट्राइंग टू टेल हियर। द पोएट सेज those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire. What is here? पोएट सिंपल शब्दों में कहना चाहते हैं those who create green wars. Green wars means war जो कि हम नेचर के अगेंस्ट लड़ते हैं। You know very well कि जब भी कोई wars होते हैं, कोई भी फायर एमिनिशंस इनका यूज होता है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक रिजल्ट होता है और वो रिजल्ट होता है डिजास्टर एंड डिस्ट्रक्शंस। वॉर हमेशा अपने पीछे तबाही लेकर आती है, डिस्ट्रक्शन लेकर आती है। एंड यहाँ पे पोइट ने सिंपल कहा कि जो लोग लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व रहते हैं प्रकृति के खिलाफ, गैस से, फायर से और डिफरेंट काइंड्स ऑफ चीज़ों से लड़ाई करते हैं, उनके लिए सिर्फ एक चीज कही गई, देयर विल बी विक्ट्री बट नो सर्वाइवर। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? कि उस चीज में लड़ाई करने में जो लड़ाई कर रहा है वो जीतेगा तो, लेकिन उस जीत को सेलिब्रेट करने वाला कोई भी नहीं बचेगा। इन when we all are going to be quiet,
लेकिन जो लोग वॉर्स में इन्वॉल्व हैं, जब वो भी शांत हो जाएंगे, वो भी चुप हो जाएंगे, एंड दे विल इंट्रोस्पेक्ट देमसेल्फ, दे विल पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स। वो क्या पहनेंगे? साफ कपड़े। यहाँ पर साफ कपड़े स्टैंड करता है पीसफुल, दैट्स कॉल्ड वाइट कलर। वाइट स्टैंड्स फॉर पीस। तो वो भी क्या करेंगे? साफ सुथरे कपड़ों को पहनेंगे, एंड दे विल कम ऑल टुगेदर इन अ यूनिसन क्रिएटिंग ब्रदरहुड। मीन्स वो सब भाईचारा निभाएंगे, एक दूसरे के साथ आ जाएंगे, बिकॉज उस वक्त कोई भी किसी का दुश्मन या किसी का भी एनिमी, कोई भी ओपोनेंट पार्टी नहीं कहलाएगा, वो सब कहलाएंगे। तो दैट इज ओनली कॉल्ड ब्रदर्स। जब वो सब साथ होंगे तो इट विल बी अ वेरी एक्सोटिक मोमेंट, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया। If we move on to the end of the poem, we know very well what I want should not be confused with total activity, with total inactivity. Means यहाँ पर क्या कह रहा है? पोइट हमको सिंपल समझाने की कोशिश कर रहा है। Listen listeners, listen readers, मैं यहाँ पर टोटल इनएक्टिविटी की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा एसोसिएशन किसी भी तरह से डेथ से है, कि सब मर जाए और ये दुनिया क्या हो जाए? खत्म हो जाए। नो, आई हैव नो एसोसिएशन, नो ट्रक विद डेथ। मैं मरने या मौत से किसी भी तरह का एसोसिएशन नहीं कह रहा हूँ। लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट। लाइफ क्या है? लाइफ हमारी है ना, जीने के लिए बनी है। तो लाइफ इज वॉट इट इज ऑल अबाउट। लाइफ जीने के लिए बनी है। लाइफ का मकसद क्या है? जीना। सो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कीपिंग क्वाइट का मीन्स क्या है? इट हियर स्टैंड्स फॉर खुद को जाने, आत्म मंथन करें, जीवन को जिएं जैसा कि वो आपके लिए है। We have come to the end of the poem, and it is very clearly been said, if we were not so single-minded about keeping our lives moving, and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. मैं इस पोर्शन का मीनिंग आपको ऑल टुगेदर समझाने वाली हूँ। स्टूडेंट्स, इस पोर्शन में पोएट सिंपल कह रहा है कि इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड मीन्स सेल्फिश, सो सेल्फ सेंटर्ड। हम क्या ना होते अगर हम सेल्फ सेंटर्ड ना होते, हम सिर्फ अपने बारे में ना सोच रहे होते और अपनी लाइफ को मूव ऑन नहीं कर रहे होते, सो वंस कुड डू नथिंग। अगर हम क्वाइट होते हैं तो वी आर गोइंग टू क्रिएट अ ह्यूज साइलेंस। लेकिन हमारा वो साइलेंस इवन द टाइम ऑफ इंट्रोस्पेक्शन में इंटरप्ट अस। हमारा वो साइलेंस भी इंटरप्ट होगा विद द सैडनेस, और वो एक सैडनेस होगी ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स एंड द थ्रेट, और वो चीज जो हम हमेशा से करते आ रहे हैं, और वो होता है मेकिंग आवरसेल्व्स स्केयर ऑफ द यूनिवर्सल ट्रूथ इज कॉल्ड डेथ। As I said to you people, death is not the end of life. We need to understand it कि इस पोम में पोएट हमें डेथ से एसोसिएट नहीं कर रहा है कि वी नीड टू डाई और फिर उससे ही हमारी जिंदगी का एंड हो गया और सारी प्रॉब्लम्स खत्म। यहाँ पे पोएट सिंपल यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट आवरसेल्व्स। हमें अपने आप को जानने की ज़रूरत है, हमें अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है, हमें अपनी कमियों को, हमारी खासियतों को, हमारी अच्छाइयों को, इन सभी चीज़ों को जानने की ज़रूरत है। इफ़ वी हैव रीच टू द एंड, इफ यू टॉक अबाउट द एंड स्पेशली, हमारा एंड सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल है, क्योंकि एंड में पोएट सिंपल समझाने की कोशिश कर रहा है, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड and later proves to be alive। मीन्स कि जब हम किसी भी सीड को अर्थ में बोई हुई देखते हैं तो आपको ऊपर से देखने पे तो लगता है कि there is nothing inside, लेकिन जब रिजल्ट सामने आता है तो वो होता है एक फ्रूट बियरिंग ट्री या एक प्लांट। उसी तरह से सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज ऑल्सो समथिंग जो कि हमें रिजल्ट देता है इन अ वेरी फ्रूटफुल मैनर विद द हेल्प ऑफ आवर इनर गुडनेस। मीन्स हम अपनी अच्छाइयों को, हम अपनी क्वालिटीज को इंट्रोस्पेक्ट या आत्म मंथन या जान पाते हैं।
at the end of the poem, the poet once again says the same line what he has spoken in the beginning. कि now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. सिंपल कि अब वो लोगों को उनके ऊपर छोड़ने जा रहा है कि अब मैं 12 तक गिनूंगा और आप सब इंट्रोस्पेक्ट करें व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड, व्हाट इज़ स्पेशल इन मी एंड व्हाट इज़ नॉट, व्हाट आर द थिंग्स दैट आई नीड टू चेंज, मुझे क्या बदलने की ज़रूरत है. होप सो ये वीडियो आपको समझ में आया हो. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे अहेड. Enjoy learning.